Hello, good morning, MN Homeopathic Medical College students. This is a lecture on homeopathy and the fundamental laws from the Department of Organ and of Medicine, and this lecture is particularly for the second BHM students. So, this chapter of Dr. H. Roberts, it denotes the number of laws which is present in homeopathy, the laws which can be applicable in our system of medicine. So, in the very beginning, it is written that among the followers of Hahnemann, we often hear the statements that homeopathy is fundamental, that it is scientific, that it is based on natural law. So, if you see in each and every aspects of homeopathy, whether it is drug proving, whether it is the sequence of cure, each and everything is related on some fundamental laws. Without any laws or principle, there is nothing in homeopathy, and without any laws or principle, there cannot be any established science. That which sets the planet in its orbit so regulates the other planet that they obey the same laws. Actually, what this means is that everything is binded up by particular laws. Now, this law, whatever is in our earth, so there are some laws in the field of medicine, there are some laws in the field of the physical science, there are some particular laws in each and every aspect. The thing is that what we need to understand, that these laws, they must be in a harmonical relationship with one another. So the law which is present in the planet, whether it may be of any other aspect, and the law which is present or which can be applicable or which is the truth of nature within the medical science should be identical. And the thing which is built for cure, it should follow the law which is correlating with all the other law of the other aspects in this world. So the thing is that what Dr. Robert make us try to understand, that this planet has particular laws in particular field. Now in this field of medicine which we are working, the law which is applicable or the law exactly which is existed, there must be one particular single law of cure. So this particular law, this is the law of homeopathy, and this is the system which is following the nature's law. If one realm of the universe was moved by fundamental laws which has no application or relation to other realms of the universe, the result must be chaos. That is, when we cannot understand, when there is no similarity between the law of this homeopathy, suppose, and the law of the other aspect, if there is a dissimilarity, if there is no harmonical relationship, if there is no correlation, there everything will be in a chaos. So it should be every law in this world should be in a uniform and in a correlating manner. So what we see, that we know, the conclusion of this part is that we know that there is only one direction of cure, and this direction of cure must be the law which is governed by the nature. And in this world there are many other aspects which is governed by the nature and which are under the sequence of some laws. Similarly, the law of cure must be one and only, and it is correlating with the other system of the other aspects of this world. So there we can see that our law of homeopathy is the perfect, and it is the truth of nature which we use in our practice. If homeopathy is a fundamental science or a part of a fundamental science, as we believe, it must work in harmony with all the natural realms and the laws which apply a relationship to homeopathy. So this is what just we have discussed. If homeopathy is founded upon fundamental laws, what are some of these laws? So now let us come to our common language of the Hindi. So if homeopathy is founded upon fundamental laws, what are the sum of the laws? Our ignorance permits us to register but a few, but inevitably the time will come if we keep a clear vision when we will be able to add more to our burden of proof. मतलब होम्योपैथी में जो फंडामेंटल लॉज है, ये कौन सा लॉ है जो होम्योपैथी में यूज़ होता है?
और हम लोग जो है कि जितना होम्योपैथी के बारे में जानते हैं, जितना लॉज के बारे में हम लोग जानते हैं, तो ये जो लॉज है हम लोग बहुत कम लॉज को एक्चुअली अप्लाई करते हैं, या कम लॉज के बारे में जानते हैं, या तो बहुत कम लॉज के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं. सो इफ़ वी वांट टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ होम्योपैथी प्रॉपरली, वी कैन फाइंड आउट मेनी थिंग्स which is applicable in our medical science. If homeopathy is founded upon fundamental laws, what are some of those laws? तो अगर होम्योपैथी को फंडामेंटल लॉज में अप्लाई हुआ है अगर होम्योपैथी में, तो इसमें कौन सा लॉ है जो अप्लाई हुआ है? तो हम लोग अगर इस चैप्टर को देखेंगे डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स की, यहाँ पे ये लिखा हुआ कि होम्योपैथी का जो फंडामेंटल लॉज है ये कौन कौन सा लॉ है और इसको कैसे अप्लाई किया गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले जो फर्स्ट फंडामेंटल लॉ है इसको देखते हैं. So the first fundamental law is the similia similibus curenta. This recognition of the law underlying cure is of ancient origin. ये जो similia similibus curenta था ये सिर्फ हैनीमैन का दिया हुआ लॉ ही नहीं था. ये similia similibus curenta ये एंशियंट ओरिजिन में थे. एंड नो वन नोज व्हेन द फर्स्ट रिकॉग्निशन ऑफ दिस लॉ क्रेप्ट इनटू यूज. किसी को ये नहीं पता कि सबसे पहले ये सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर का कहाँ से आया था इस लॉ. बट एंशियंट हिंदू मैन्युस्क्रिप्ट्स रिकॉर्डेड इट्स एप्लीकेशन. तो पुराने हिंदू मैन्युस्क्रिप्ट से इसका एप्लीकेशन रिकॉर्ड हो चुका है. और अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें तो एरिस्टोटल रिकॉग्नाइज्ड इट एंड हिपोक्रेटिस सेंस द पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस लॉ एंड अप्लाइड इन सम रिकॉर्डेड केसेस. तो एरिस्टोटल एंड हिपोक्रेटिस फ्रॉम ग्रीस दे हैड डिस्कस्ड अबाउट दिस लॉ, and we see that the most ancient use of this law come from the Hindu manuscripts. Now this similia similibus curenta, where from Hahnemann got this, Hahnemann later demonstrated this law to be universal and not an occasional circumstance. So ये जो law है ये universal law है, ये कोई occasional circumstance नहीं है, ये Hahnemann ने बोला. And Hahnemann has demonstrated this law. Hahnemann was the person to establish this law completely for the complete cure. So we can see that what we call that Hahnemann was the father of homeopathy. He called the science and art of healing which naturally followed homeopathy. But the thought was not a new one. It was age old before a science of healing was based solely on this law. तो ये जो थॉट था ये सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर ये शुरू में हैनीमैन से भी बहुत पहले ये चीज़ था. लेकिन इसी चीज़ इसको कम्प्लीटली एस्टैब्लिश करने के लिए मेडिकल साइंस में क्योर में प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए जितना एफर्ट हैनीमैन ने दिया था ये आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया था. एंड हैनीमैन हैज एस्टैब्लिश दिस लॉ इन द फॉर्म ऑफ होम्योपैथी. Next, the second law of cure, this time pertaining to the direction of cure was formulated. अब एक तो बेसिक लॉ ऑफ क्योर हो गया, इसके बाद डायरेक्शन ऑफ क्योर जो होता है इसके ऊपर जो लॉ है इसको देखते हैं. तो क्योर टेक्स प्लेस फ्रॉम अबव downwards, from within outwards, from an important organ to a less important organ. Symptoms disappear in the reverse order of their appearance, the first to appear being the last to disappear. तो हम लोग इसमें ये देखते हैं कि इस चीज़ को हम कह सकते हैं दिस इज डिनोटेड एज हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर. एंड दिस हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर वाज एक्चुअली फर्स्टली इट इज डिनोटेड बाय हिपोक्रेटिस one part, then Paracelsus another, and another was given by Hahnemann. And in a total in a compiled form it has been demonstrated by Dr. Constantine Hering, which we get from Dr. Kent's writing. सो क्योर जो होता है ये ऊपर से नीचे तरफ इसका सिम्टम अगर जाए तो हम समझ सकते हैं इसमें क्योर हो रहा है. फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, बाहर अंदर से ये बाहर की तरफ सिम्टम आ रहा है, दैट इज़ द प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ क्योर. मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन से अगर लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन में ये डिजीज़ डिस्क्रेसिया या डिजीज़ कंडीशन जाता है तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि यू आर गोइंग ऑन अ क्योर. एंड इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम जो है ये जिस तरीके से वन आफ्टर अनदर सीक्वेंस में आया है इसका उल्टा तरीके से ये वापस जाएगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्योर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर ट्रीटमेंट. नेक्स्ट, अनदर लॉ.
equally applicable throughout the universe is that of the law of mutual action. So we know that there is in our school we have read that law of the Newton's third law of motion. So like that, it is applicable in every aspect of the world. Action and reaction are equal and opposite. So action and reaction are equal and opposite, ये हमारे होम्योपैथी में भी applicable है. And when we get the direction, the intensity of the medicine, तो एक एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं फ्रॉम द डायरेक्टली फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ मेडिसिन. इफ वी सी एफोर्स नंबर 64, तो वहाँ पे ये लिखा है कि प्राइमरी एक्शन का जितना इंटेंसिटी होता है सेकेंडरी एक्शन का उतना ही इंटेंसिटी होता है. सो देयर इज वेयर देयर इज दिस टाइप ऑफ एक्शन वी सी दैट देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. And in each and every aspect of drug proving, right from the point of cure, the dosage, etc., we should understand that when there will be a primary action, there will be another secondary action, and that will be equal and opposite. Let us look a law which follows naturally the law of mutual action. ये law of mutual action जो हमने अभी अभी देखा, तो इसके बाद जो law आता है, we see that this is the law designated as the law of least action. ये law of least action मोपर्टियस के द्वारा, जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, इनके द्वारा दिया गया था. एंड दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन आवर होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन. टू अस एज होम्योपैथिक फिजिशियन एंड स्टूडेंट्स इट मे बी नोन एज द लॉ ऑफ क्वांटिटी एंड डोज. कैसा? द क्वांटिटी ऑफ action necessary to affect any change in nature is the least possible. The decisive amount is always a minimum and infinitesimal. So if you see that if you want to make any change, how much effort or how much dose you should give in that part. If we want to make any change, the least possible effect which you can give is sufficient to make that change. So if we come correlating with our homeopathy with this law is designed by mathematician, but we are physicians, and how we are formulating this law in our system. This law is when we give the medicine and we give in a minimum dose, it is sufficient to bring a complete cure. We should not give unnecessarily high doses which may produce hazard in the economy of the health of the patient. So following this law, we see that if you just overpower the deranged dynamic vital force, and if our power of the medicine is just a very little similar and stronger to the disease, it will completely cure the disease. The law of least action, we see that it is very important for us to understand what type and how much minimum dose of medicine we should give to a patient. Another law of quantity to be considered here is the quantity of the drug required is in inverse ratio to the similarity. मतलब जितना सिमिलर होगा उतना कम क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होगी. In other words, the greater the similarity of the drug symptom to those of the patient, the less quantity will be required, for the greater will be the state of the susceptibility of the patient. जितना ज़्यादा सिमिलर होगा इतना कम क्वांटिटी अप्लाई होगा. A corollary to the law of the quantity is the quality of the action of a homeopathic remedy is determined by its quantity in inverse ratio. मतलब आप एक कोई भी केस को आप सोच सकते हैं कि जितना ज़्यादा सिमिलिमम होगा इतना कम क्वांटिटी का मेडिसिन लगेगा. जस्ट यू हैव टू रिड्यूस द डोज एज लीस्ट एज पॉसिबल. द पोटेंसी में बी high, the potency is it should be
correlated with the susceptibility of the patient, but the repetition and the quantity must be diminished as far as possible. इसका उल्टा देखते हैं कि जब कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन द्वारा पैलिएशन होता है तो वहाँ पे जितना मतलब डिसिमिलरिटी है, जहाँ डिसिमिलरिटी है वहाँ पे हाई मतलब द क्वांटिटी ऑफ द डोज इज गिवन इन अ वेरी लार्ज अमाउंट, whereas in the when we are giving a similimum the quantity is given in a very less amount. Biology gives us this law: function creates and develops the organ. So first there is the function, and it is the function which brings about the development and evolution within the organs. Following the biological law, therefore, homeopathy postulates the law of symptom development. Functional symptom precedes structural changes. हर जगह में हम लोग क्या देखते हैं कि पहले कोई फंक्शनल डिस्टर्बेंस होता है, फंक्शनल डिस्टर्बेंस के बाद फंक्शनल डिस्टर्ब होते होते जो जिसके थ्रू जिसका फंक्शन, जिस ऑर्गन का फंक्शन हो रहा है, ये फंक्शन जो है ये डिस्टर्ब होता है, एंड स्ट्रक्चर जो है फिर धीरे धीरे इस स्ट्रक्चर पर इफेक्ट होता है. आफ्टर दैट द स्ट्रक्चर इज डिस्टर्ब. सो इन ईच एंड एवरी केस वी सी दैट द फंक्शन प्रीसीड्स द structural changes. Functional symptoms precede the structural changes. So this is also the application of another biological law. If we consider the miasm in respect to this, we see that Sora is the mother of all miasm. We see if we correlate with the changes of the body, Sora is the functional disturbance. Then comes the structural changes. We see that there is a structural changes of overgrowth in psychosis and ulceration or destruction in syphilis. So first of all there is a functional change everywhere, then either it comes with the psychosis or either it comes with the syphilis. So there is a disturbance in the functions firstly, thereafter there is a disturbance in the structure. Now the law of use governing the homeopathic remedy must therefore be the dose and quantity that will thoroughly permeate the organism and make its essential impress upon the vital force is that which will affect the functional sphere of the individual. तो जैसे कि हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करते हैं, ये इस लॉ के ऊपर आधारित होना चाहिए कि हम लोग का जो मेडिसिन है इसका जो फंक्शनल सिमिलरिटी है ये बहुत अच्छे से होनी चाहिए. जो डोज जो क्वांटिटी जिस हिसाब से दिया जाएगा और जिस टाइप का क्वालिटी मेडिसिन हम लोग देंगे तो इट शुड affect the organism in its functional manner. We see that जितना मेटेरियलिस्टिक लेवल में जाएंगे तो ये स्ट्रक्चरल लेवल पर जाता है, जितना फंक्शनल लेवल और डायनामिक लेवल पे जाएंगे मतलब इट विल गो टू द इट इज़ गोइंग अवे फ्रॉम द स्ट्रक्चरल एंड गोइंग टू द फंक्शनल. हम लोग ये देख सकते हैं कि जब हमारे मेडिसिन एक्ट करेगा, ये मेडिसिन इफ़ द मेडिसिन इज मैचिंग with the functional sphere more and more, if it is matching with the mental symptom more and more, rather it is very important, it is more important than if the medicine is matching with the structural changes. If we see in one case, one medicine is very similar to the mental sphere and the functional changes, and another medicine is similar, very similar to the only to the structural changes. We can say that the medicine which is matching with the functional changes on the mental symptom, it is more similar or it is more important medicine to be selected. Law of repetition of the dose. Now never repeat your remedy so long as it continues to act. This is a very important point to be noted, and it is corresponding to the organon of medicine of aphorism number 245 in the 5th edition. Until and unless there is a completeness of your given medicine, you should not repeat, you should not change the medicine. ये तो है ही है कि change तो नहीं करना है, but you should at the same time you should not repeat the same medicine even, because it is written there that even the repetition of the medicine which is beneficial or which is acting beneficially in this case, if you repeat
before the completion of its action it will disturb the case. एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि कोई एक केस ने अपने टोटलिटी ऑफ सिम्टम किया और फॉलोइंग ऑल द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी आपने कोई मेडिसिन दिया, सपोज कोई मेडिसिन दिया, मे बी नाटामो, नागभूमिका, थूजा एक्सेट्रा. उसके बाद द पेशेंट इज कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग, सो यू आर फाइंडिंग दैट द पेशेंट इज ग्रेजुअली एंड कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग. तो आपका मेडिसिन का जो एक्शन है ये चल रहा है, एक्शन एंड द रिएक्शन एवरीथिंग इट इज, ये चल रहा है. ओके, तो अनटिल एंड अनलेस दिस एम्यूलोरेशन इट विल स्टॉप, तब तक के लिए हमको बीच में कोई भी दूसरा या इसी मेडिसिन को रिपीट नहीं करना है. हम लोग क्या समझते हैं कि किसी भी मेडिसिन के द्वारा अगर कोई इम्प्रूवमेंट हुआ तो उस मेडिसिन को ही फिर रिपीट करते तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है. इफ़ योर मेडिसिन इज स्टार्टिंग टू एक्ट एंड देयर इज कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, दिस इम्प्रूवमेंट इज ड्यू टू द सेकेंडरी एक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स. आपका मेडिसिन जो है ये सिमिलर मेडिसिन था, ये मेडिसिन देने के बाद पहले क्या हुआ है, प्राइमरी एक्शन. तो प्राइमरी एक्शन में जो भी होम्योपैथिक एग्रीवेशन हुआ होगा ये आपको दिखाई नहीं दिया होगा या दिखाई दिया भी होगा. इट मे द सिम्टम ऑफ द पेशेंट मे बी इंक्रीज्ड ड्यू टू दिस होम्योपैथिक एग्रीवेशन. एफोरिज्म नंबर 157, 158. So the total is 157 to 161. You have to read homeopathy aggravation from that part. तो पहले क्या होता है मेडिसिन देने के बाद प्राइमरी एक्शन होता है, उसके बाद क्या होता है द वाइटल फोर्स अगेन रिएक्ट टू दिस प्राइमरी एक्शन एंड देयर इज सेकंड एक्शन. उस कारण से क्या होगा, ये एम्यूलेशन में जाएगा. जब तक वाइटल फोर्स का एक्शन कंटिन्यू रहेगा वो एम्यूलेशन होता ही जाएगा. इस बीच में अगर फिर से आपने मेडिसिन देके उसको डिस्टर्ब कर दिया, फिर प्राइमरी एक्शन सेकेंडरी एक्शन बीच में आकर डिस्टर्ब हो गया, तो वहाँ पे जो है कि क्योर डिले होगा. यू शुड नॉट रिपीट द मेडिसिन अनटिल एंड अनलेस द एक्शन बिकम्स कंप्लीट, एक्शन ऑफ योर दैट पर्टिकुलर डोज which you have given. Until and unless it has not been completed, do not repeat the medicine. तब तक के लिए क्या चलेगा, प्लेसिबो चलेगा. The law that must govern the production of symptom by artificial means, that is drug proving. तो drug proving के लिए क्या law है, by which we get our guidance for the administration of drugs to the sick. Never repeat the dose in a proving while symptoms are manifest from the dose already taken. Proving के समय में हम लोग एक प्रूवर को कुछ डोज देते हैं, फिर उसमें सिम्टम्स आने लगते हैं. जैसे सिम्टम आने लगते हैं कि वी हैव टू वेट एंड वॉच द ड्यूरेशन, द इंटेंसिटी, द मोडालिटीज़, द टोटल ओवरऑल जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम ऑफ द ड्रग, और भी बहुत सारे कुछ एक्सेट्रा, इंक्लूडिंग द पैथोलॉजिकल चेंजेस व्हाट इज गोइंग ऑन और टेकिंग प्लेस ड्यू टू द एक्शन ऑफ दिस मेडिसिन. बट इसके साथ हमको इस लॉ को ध्यान रखना पड़ेगा कि नेवर रिपीट द डोज इन अ प्रूविंग के समय में रिपीट नहीं करना है जब तक जिस मेडिसिन जिस ड्रग को आपने दे दिया है उस डोज का एक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको रिपीट नहीं करना है. इसको ड्रग प्रूविंग अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे उस जगह पे ये लागू होता है ये लॉ. नाउ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल डिजीज स्टेट, इस जगह के लिए कुछ लॉज है, इसको देखते हैं. एनी ड्रग व्हिच इन इट्स नेचुरल स्टेट अफेक्ट द वाइटल एनर्जी बट लिटिल विल डेवलप अ प्रूविंग ओनली इन अ हाई पोटेंसी. जो वाइटल एनर्जी पे बहुत कम समय मतलब बहुत कम असर करता है कोई भी ड्रग जो है नॉर्मली, ये प्रूविंग में हाई पोटेंसी में ये रिएक्ट करेगा. इफ़ यू गो टू द चैप्टर ऑफ ड्रग प्रूविंग ऑफ H.A. Roberts, these three points or laws are written there. Point number 2, any drug which in its natural state disturbs the vital energy to functional manifestations only may be proven in a crude form. तो जो ड्रग फंक्शनल मैनिफेस्टेशन देता है नॉर्मली उसको क्रूड फॉर्म में प्रूव करना है. और तीसरा, एनी ड्रग व्हिच इन इट्स नेचुरल स्टेट डिस्टर्ब्स द वाइटल एनर्जी टू डिस्ट्रक्टिव मैनिफेस्टेशन शुड बी प्रूवन ओनली इन ए पोटेंटाइज्ड फॉर्म. जो नॉर्मली और नेचुरली शरीर में देने से कोई डिस्ट्रक्टिव एक्शन देता है तो उसको सिर्फ पोटेंटाइज फॉर्म में ही प्रूव करना है. तो इसको एकदम छोटे से आप फिर से एक बार देख सकते हो कि जो ड्रग नॉर्मल स्थिति में हम लोग का शरीर के ऊपर बहुत ही कम असर करता है, कोई ऐसे ड्रग सब्सटेंस, उसको हाई पोटेंसी में प्रूव करना है.
जो ड्रग नेचुरल स्टेट में सिर्फ फंक्शनल चेंज करता है हमारे लेने से नॉर्मली, उसको क्रूड फॉर्म में प्रूव करना है। और जो ड्रग डिस्ट्रक्टिव एक्शन देता है, नॉर्मली डिस्ट्रक्टिव एक्शन देता है, तो उस ड्रग को पोटेंटाइज फॉर्म में प्रूव करना है। Law of least action: the quantity of action necessary to effect any change in nature is the least possible. Somehow it is related to the mathematical law which has been discussed. तो किसी भी जगह में अगर हमको कोई चेंज करना है तो एकदम लीस्ट एक्शन, जितना लीस्ट एक्शन पॉसिबल होता है इसी में चेंज पॉसिबल है। देयर वी नीड नॉट टू डू एनी एक्स्ट्रा और अननेसेसरीली बिग एप्लीकेशन। इफ़ यू सी दैट, एक साधारण एग्जांपल देता हूँ कि इफ़ यू वांट टू लिफ्ट अप 1 किलोग्राम वेट, यू डू नॉट नीड टू ब्रिंग अ क्रेन, यू हैव टू लिफ्ट अप बाय योर हैंड। और कितना पावर उसमें लगता है, अगर 1 किलोग्राम उसका वेट है, 1 kg वेट से ज़्यादा फोर्स, अगर जस्ट इतना ही ज़्यादा अगर फोर्स उल्टा तरफ टू द अपोजिट ऑफ द ग्रेविटेशन अगर आप दे सकते हो तो यू कैन लिफ्ट दैट 1 kg वेट। सो हमको उस जगह में बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट, उस लेवल में अननेसेसरी एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो सिमिलरली इन द आवर मेडिसिन, व्हेन वी गिव द मेडिसिन, दिस मेडिसिन we require to give the least possible dose which can just stimulate the vital force enough to bring a action and a reaction. So this is the law of least action which is applicable in homeopathy. The state of disordered vital energy is that state which homeopathy offers the greatest hope of regaining the lost balance of power in each individual, and that not by coercion of the vital force but by so stimulating it in the equilibrium is restored by the same force that disturbed it. एक एस्ट्रोनॉमी के बारे में इस जगह पे डॉक्टर H.A. रॉबर्ट ने उस कोटेशन दिया। उसमें ये जो अर्थ मून और सन, जो यूनिवर्स का जो ये मूवमेंट है, इसके बारे में ये बताया गया कि ये मूवमेंट एक फोर्स के द्वारा हो रहा है। और ये फोर्स जहाँ से आया था, फिर अर्थ एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में ये घूम रहा है। अल्टीमेटली ये जो फोर्स है, इसी फोर्स का ही नतीजा होगा जहाँ पे एक ना एक दिन ये फिर से एकदम कम्प्लीटली स्टैटिक पोजीशन में जाएगा। सृष्टि स्थिति विनाश, ये जो एक प्रक्रिया है, दिस इज द सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स। तो जहाँ पे वाइटल एनर्जी डिसऑर्डर्ड हुआ है, तो वहाँ पे बैलेंस कहाँ पे डिसऑर्डर हुआ है? जो वाइटल फोर्स है उसी फोर्स के द्वारा डिसऑर्डर हुआ है, उसी फोर्स के द्वारा वो फिर फाइनली अगेन रिस्टोरेशन होगा। वी नीड टू गिव द जस्ट द स्टिमुलस इन दैट कंडीशन। तो ये एक कोरिलेशन रॉबर्ट का फिलोसफी में हमको मिलता है रिगार्डिंग द कंपेयरिंग विद द यूनिवर्स, द फोर्स विच इज़ जिस फोर्स के द्वारा ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, उसी फोर्स के द्वारा फिर से ये स्टैटिक होगा। So this is one of the discussion which is given by Dr. H.A. Roberts in this part. So finally we can what we have discussed, we can have the recapitulation, एक summary जो इस चैप्टर के एंड में दिया गया है। तो इसको आप देख के पढ़ सकते हो, बहुत आसान है। हम लोग इसको जस्ट एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो क्योर के लिए जो होम्योपैथिक लॉ है, द लॉ ऑफ क्योर, दैट इज द सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। लॉ ऑफ एक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। फिर लॉ ऑफ क्वांटिटी एंड डोज, इन्वर्स रेशियो, जहाँ पे जितना सिमिलरिटी होगा उतना इन्वर्स रेशियो में क्वांटिटी ज़रूरत होगा। और क्वांटिटी कोई भी जगह में चेंज करने के लिए एकदम लीस्ट पॉसिबल क्वांटिटी से चेंज हो सकता है। फिर जब क्वालिटी का लॉ आता है, क्वालिटी ऑफ एक्शन इज डिटरमाइंड बाय क्वांटिटी इन इन्वर्स रेशियो। क्वालिटी और क्वांटिटी इन्वर्स रेशियो, क्वांटिटी ज़्यादा होगा क्वालिटी कम होगा, क्वालिटी ज़्यादा होगा क्वांटिटी कम होगा। फिर लॉ ऑफ यूज़, द डोज कैसे होगा कि जैसे हम यूज़ करेंगे, द डोज ऑफ क्वांटिटी विल थॉरोली परमेट द ऑर्गेनिज्म एंड मेक इट्स एसेंशियल इम्प्रेस अपॉन द वाइटल फोर्स इज दैट व्हिच विल अफेक्ट द फंक्शनल स्फीयर ऑफ द इंडिविजुअल। तो जब यूज़ करेंगे तो फंक्शनल स्फीयर में जो ड्रग होगा दैट विल बी मोर एप्लीकेबल और मोर एफिशिएंट।
लॉ ऑफ बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, बायोलॉजी से ये मिलता है कि फंक्शन क्रिएट्स एंड डेवलप द ऑर्गन। फिर डिजीज डेवलपमेंट पे हम लोग देखेंगे कि पहले फंक्शनल डिसऑर्डर होता है, उसके बाद फिर स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर होता है। प्रूविंग के जो लॉ है, जो वी हैव जस्ट नाउ डिस्कस्ड, कि जो सब्सटेंस नॉर्मली और नेचुरली हमको बहुत कम इफेक्ट करेगा, उसका हाई पोटेंसी में प्रूविंग की ज़रूरत है। नंबर 2, दो सब्सटेंस जो कि हम लोगों के वाइटल एनर्जी को फंक्शनल लेवल में अफेक्ट करेगा, तो उसमें क्रूड फॉर्म में प्रूविंग की ज़रूरत हो सकता है। एंड नंबर 3, जो सब्सटेंस हम लोग को बहुत डिस्ट्रक्टिवली अफेक्ट करेगा, उसको ओनली पोटेंटाइज फॉर्म में ही प्रूव करना चाहिए। फिर लास्टली रिपीटेशन का जो लॉ है कि प्रूविंग के समय में जो डोज दिया गया उस डोज को रिपीट नहीं करना जब तक उस डोज का एक्शन कंप्लीट हो जाए। एंड रिपीटेशन का जो लॉ है क्योर के लिए, ये इट डिनोट्स दैट जब भी आप कोई मेडिसिन देते हो, उस मेडिसिन का जब तक उस मेडिसिन का एक्शन कंटिन्यू है तब तक उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। तो आई हैव डिस्कस दिस इन ईजी लैंग्वेज ऑफ हिंदी, एंड व्हेन यू हैव टू राइट दिस लॉ, यू हैव टू राइट द लैंग्वेज ऑफ द लॉ फॉर योर एग्जामिनेशन। सो टिल नाउ हम लोग इससे पहले नेचर्स लॉ ऑफ क्योर को ही देखे थे, जिसमें homeopathic law of nature, a weaker dynamic affection is permanently extinguished in a living organism by a stronger one if the latter was differing in kind is very similar to the former in its manifestation। ये एफोर्स नंबर 26 में नेचर्स लॉ ऑफ क्योर पे बताया गया था। इसके अलावा इतने सारे लॉ जो कि पूरा दुनिया का डिफरेंट साइंस से कोरिलेट होता है, ये सारे लॉ होम्योपैथी में अप्लाई होता है। इससे हमको 2 कंक्लूजन और मालूम पड़ता है, जो कि ये हम लोग का समझ है, ये इस बुक में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग को क्या समझ में आता है इस जगह में। एक तो है कि पूरा दुनिया में जो भी लॉ है ये सारे ट्रूथ है, और अगर वो लॉ होम्योपैथी के साथ कोरिलेट होता है, इसका मतलब होम्योपैथी भी ट्रूथ है। अनदर थिंग इज़ दैट होम्योपैथी का हर कोई चीज़ कोई ना कोई फंडामेंटल लॉ के ऊपर आधारित है, तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि होम्योपैथी इज़ अ कंप्लीट साइंस। सो काइंडली गो थ्रू द बुक and you have to learn by heart all the law present in this chapter, written in this chapter. Okay, thank you so much, we will meet again.